Hello friends, welcome to Seema classes. I am Monica Gupta. Today I am going to teach you force and pressure. In force and pressure, first I am going to topic for force. What is force? Force क्या है? When we lift a bucket, what we do? We pull the bucket. When we open the door, what we do? We push the door. When we close the door, we pull the door. वो all activities which involve push and pull, we use force. In all activities which have push or pull, that is force. What is force? Push or pull. When we apply push or pull, what are the effects on the object? जब भी मैं push या pull करती हूँ, उससे क्या effects आते हैं, क्या फर्क पड़ता है किसी भी object पे? Then these are the effects of force. First is move a stationary object. When we apply a little force to an stationary object, it starts moving. आपकी बॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है. You just kick the ball. What happened? Your ball starts moving. This is how your effect of force show. Second one is you can stop the moving object by applying a force. आपकी बॉल आ रही है, किसी ने थ्रो करा, यू जस्ट कैच द बॉल. आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया एंड यू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस इज हाउ यू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स. थर्ड वन इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. टू अंडरस्टैंड दिस, अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द क्रिकेटर्स. What cricketers do? What batsmen do? Ball comes in the direction of the bowler or in the batsman. It just hit the ball. What happened? It just changed the direction of the ball. It just hit the ball for sixes and fours and it changed the direction of the ball. Similarly, at the same time, it can change the speed of the object also. Ball is still moving and we apply the direction force in the same direction. What happens? Speed increases. If I am cycling, doing a cycling, कोई आया मेरा फ्रेंड, उसने पीछे से मुझे थोड़ा सा पुश कर दिया. What happened? मेरी स्पीड तेज हो गई. तो फोर्स कैन change the speed of the object also. Next one is it can change the shape of the object. By applying a force, we can easily change the shape of the object. Take an example. In the morning, when we do our brush, we press the toothbrush or we press the toothpaste tube. What happened? Shape changes. When we stretch the rubber band, what happened? When we apply a force to stretch the rubber band, shape changes. So by applying a force, we can move a stationary object, we can stop a moving object, change the direction of the moving object, we can change the speed of the object, and we can change the shape of the object. These all 5 effects we can do by applying a force. Now come to the classification. Before classification, one thing, what is the unit of force? Unit of force is Newton. As when we measure length, we use unit meter. When we measure mass, we use unit gram or kilogram. Same way, when we measure force, its unit is Newton. और what is net force? Net force क्या है?
एक बहुत हैवी बॉक्स है, एक फ्रेंड ने आया, उसने पुश किया उसको, उसका फोर्स था 2 न्यूटन। वो हैवी बॉक्स हिल नहीं पाया। तो एक फ्रेंड और आया, उसने भी अपना फोर्स लगाया, उसका फोर्स था 3 न्यूटन। अब वो बॉक्स मूव हो गया। नाउ कितना फोर्स अप्लाई हुआ उस बॉक्स के ऊपर? 2 + 3 5 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि दोनों फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई कर रहे थे टू पुल द बॉक्स। व्हाट हैपन? और टू पुश द बॉक्स, द नेट फोर्स इज 5 न्यूटन। व्हाट आई वांट टू से कि इफ फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एडेड। बट उसी बॉक्स को एक फ्रेंड और आया, उसने दूसरे डायरेक्शन से, इन द अपोजिट डायरेक्शन से अपना फोर्स लगाया। उसका फोर्स था सपोज 4 न्यूटन। तो उस बॉक्स पे जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स काम करेगा, वो कितना करेगा? इधर से 2 लगा रहे थे, दोनों का कितना था? 5 न्यूटन। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रेंड ने आके अपना फोर्स लगाया, वो लगाया 4 न्यूटन का। तो एक्चुअल में जो फोर्स उस बॉक्स पे लगेगा वो होगा 1 न्यूटन का, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो जो फोर्स अप्लाई हुआ उसके ऊपर, वो हुआ उन दोनों फोर्स का डिफरेंस। इट मीन्स कि if force applied in the opposite direction, the net force is the difference of both the forces। इसका मतलब उस बॉक्स पे अब से 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, contact force and non-contact force। Contact means when two objects come in contact। दोनों ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे और जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स when we lift the box। what force we use? Our muscles exert force। so when our muscles exert force, that force is called muscular force। second one is mechanical force which exerted by the machine। मशीन कोई भी अपने आप काम नहीं करती। मशीन कब काम करती है? जब हम उसे कोई एनर्जी देते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बाय फ्यूल, बाय सम विंड, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग। तो उस एनर्जी से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप ये देखो कि कई बार हमने देखा बॉल हमारे ग्राउंड में आ रही है, वो लुढ़क रही है अपने आप, लुढ़कते लुढ़कते अपने आप रुक गई। वो कैसे रुक गई? क्या मैंने रोका उसको? आपने रोका? नहीं, पर वो तब भी अपने आप रुक गई। इट मीन्स कोई तो फोर्स है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है एंड इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन वॉक, वी कैन राइट, ऑल दिस वी कैन स्टडीड इट अबाउट इन डिटेल इन द चैप्टर फ्रिक्शन। नाउ कम टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force। In magnetic force, a force exerted by magnet, that is called magnetic force।
कई बार देखा होगा मैग्नेट के पास आप छोटी छोटी सी आयरन स्ट्रिप्स लेकर आइए, मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, वो थोड़ी सी दूरी से ही वो अट्रैक्ट होके मैग्नेट पे चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर मैग्नेट पे एक अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में आते ही उस पे मैग्नेट का फोर्स काम करने लगता है, और जैसे ही वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती हैं वो फोर्स काम करता है और वो अट्रैक्ट होकर मैग्नेट पे आ जाती हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, in electrostatic force, when we take an example, when take a comb, we rub the comb on the hair and that comb brings to the near a bits of paper. You see your bits of paper attracted towards the comb. Why? Because when we rub the comb, my comb become charged. ये चार्ज बॉडी हो जाएगी, और चार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्ज बॉडी लगाती है फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे यूनिवर्स में सब पे एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई सन अपनी जगह पर ही है, अर्थ अपने ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है, मार्स अपने ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में सब ऑब्जेक्ट पे अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एंड एक वन थिंग इज ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी? ग्रेविटी वो जो हमारी अर्थ अपने हर ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, वो ग्रेविटी है। जब मैंने एप्पल उछाला तो वो एप्पल नीचे ही आया, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ की फोर्स है। हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी ग्रेविटी होती है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस तरफ वो हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है। तो हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी की वजह से हमारी बॉल हम ऊपर भी उछालेंगे तो भी नीचे ही आती है। ओके, नाउ दिस ऑल अबाउट फोर्स। इन माय नेक्स्ट वीडियो you can learn about pressure. Okay, till then, goodbye. If you like my video, please subscribe my channel and don't forget to press bell button so that you get the notification of my new videos. Thank you.